ان کی اکلوتی بیٹی سندر کماری تھی جو اپنے نام کی تفسیر تھی۔ حسن صورت کے ساتھ حسن سیرت بھی شامل تھا۔ مجسمہ حسن و معصومیت جہاں پہنچتی تھی اپنا شعلہ افروز نگاہوں سے لوگوں کے خرمن دل کو جلا دیتی تھی۔ یہ مجسمہ حسن ایک باہوش راجکمار کے قلب کی تسکین کا سامان ہوئی اور شادی کی مقدس زنجیر کی بدولت اس سے وابستہ ہو گئی۔ شہزادہ بھی قسمت سے ویسا ہی ملا جیسا ملنا چاہیے تھا، حسین، شریف، سمجھدار، نیک اور مخلص۔ اس کا دل محبت سے لبریز تھا اور سندر کماری کے دل کے جذبات کو بھی سمجھتا تھا۔ دونوں کو ایک دوسرے کی بدولت جنت حاصل تھی اور ان کی چھوٹی سی دنیا میں کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہم مسلمان کیوں ہوئے اس سلسلے کی آج کی شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی شخصیت کا نام دیا نگر کی شہزادی، دیا نگر کی شہزادی، نام ان کا سندر کماری۔ تو ان کی داستان شروع کرنے سے پہلے آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی ایمان افروز داستانیں آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ دیا نگر کے مہاراجا ان چند والیاں ریاست میں سے تھے جو وزیرداری اور مغربی تعلیم کے بظاہر متضاد اوصاف کے حامل تھے۔ ان کے مذہب کو علوم جدید کی روشنی میں کوئی صدمہ نہیں پہنچایا تھا، لہذا ان کے لیے نہایت آسان تھا کہ شیلے اور گیٹس کی نظموں کا مطالعہ کرنے کے بعد مندر میں جا کر بت پرستی کریں۔ وہ ویدانت کے عمیق فلسفہ کو اوہام پرستی کے منافی خیال نہیں کرتے تھے اور سپنسر اور براڈس کے مقالات پڑھ کر بھی چاترک کے حامی تھے۔ ان کی اکلوتی بیٹی سندر کماری تھی جو اپنے نام کی تفسیر تھی۔ حسن صورت کے ساتھ حسن سیرت بھی شامل تھا۔ مجسمہ حسن و معصومیت جہاں پہنچتی تھی اپنا شعلہ افروز نگاہوں سے لوگوں کے خرمن دل کو جلا دیتی تھی۔ یہ مجسمہ حسن ایک باہوش راجکمار کے قلب کی تسکین کا سامان ہوئی اور شادی کی مقدس زنجیر کی بدولت سے وابستہ ہو گئی۔ شہزادہ بھی قسمت سے ویسا ہی ملا جیسا ملنا چاہیے تھا، حسین، شریف، سمجھدار، نیک اور مخلص۔ اس کا دل محبت سے لبریز تھا اور سمندر کماری کے دل کے جذبات کو بھی سمجھتا تھا۔ دونوں کو ایک دوسرے کی بدولت جنت حاصل تھی اور ان کی چھوٹی سی دنیا میں کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ مگر یہ کب ہوا کہ دو دلوں کو راحت نصیب ہوئی ہو اور تفرقہ پرداز فلک چین سے بیٹھا ہو۔ راجکماری اور سندر کماری اسی دنیا کے فانی انسان تھے۔ یہ بھی ان قوانین ابدی کے ماتحت تھے جن سے کسی کو چارہ نہیں۔ غرض سندر کماری کو راجکمار کی فرصت کا صدمہ سہنا پڑا اور قدرت نے اس کے محبوب شوربے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا کر دیا۔ 16 برس کے سن میں ایک پیکرے حسن و جمال کی بیوگی اور پھر ہندو قانون کے مطابق اس کا مدت العمر ایک زہر گداز ثانیہ کے رنج و الم کے لیے وقف ہو جانا۔ اب حالت یہ ہے کہ سندر کماری کو دنیا کی کسی چیز سے رغبت نہیں ہے۔ وہ زیب و زینت جو نسوانی حسن کا تتمہ ہے اس کے جسم سے ناآشنا ہے۔ وہ راحتیں جو جوانی کے لیے پیدا ہوتی ہیں وہ اس سے کوسوں دور ہیں۔ اس کے دل کی روشنی تاریکی سے تبدیل ہو گئی اور اب تمام دنیا اس کی نظر میں اندھیر ہے۔ وہ اکثر کہتی ہے اور سچ کہتی ہے کہ کاش میں مر جاتی، مگر موت کی آرزو کا پورا ہونا آسان نہیں ہے۔ آرزو جس چیز کی بھی ہو مدعا کے حصول کو دشوار بنا دیتی ہے۔ وہ غم جو گلا گونجتا ہے اور دل میں دھواں پیدا کرتا ہے اکثر انسان کو دنیا کی طرف سے مایوس کر کے ان ابدی حقیقتوں کی طرف متوجہ کر دیتا ہے جن کو ہم روحانیت یا مذہب کہتے ہیں۔ روح دنیا کی مسرتوں سے بیدار ہو کر ان مسرتوں کے اقتصاد کی تلاش میں گم ہو جاتی ہے جن کو فنا نہیں۔ سندر کماری نے بھی دنیا کی طرف سے بیدار ہو کر مذہب کی طرف رجوع کیا اور رفتہ رفتہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ اپنا گھر بار چھوڑ کر بنارس روانہ ہو گئی۔ اس کے ضعیف باپ نے ہر چند کوشش کی کہ اسے کچھ دولت دے دے کہ وقت پر کام آئے یا کچھ اور ایسا بندوبست کر دے کہ اسے تکلیف نہ ہو، لیکن اس نے قبول نہ کیا اور کہا کہ میں دھرم کے لیے باہر نکلی ہوں، بھکتی میں مایا کا کیا کام ہے۔ راجا صاحب کو مجبور ہونا پڑا اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ ان کی بیٹی کا ارادہ کس قدر مضبوط ہے۔ اس کے علاوہ اس کے مذہبی ارادوں میں خلل ڈال کر اپنی عاقبت خراب کرنا نہیں چاہتے تھے۔
दुनिया की वो मुकद्दस चीजें जो हमें दूर से बहुत दिलफरेब नजर आती हैं, अक्सर बहुत ही मकरूह और खराब होती हैं। कितने राहब ऐसे हैं जो फिल हकीकत राहब हों और कितने हादी वाकई हदायत का काम करते हैं। जब सुंदर कुमारी बनारस पहुंची तो उसे भी इन तलख हकीकतों का सामना करना पड़ा। इसके रंजो अलम ने इसकी फितरी कशिश को कम न किया था और इसका जाहिद फरेब हुस्न अब भी तारकुद दुनिया रहबों तक को अपना गर्विदा बना लेता था। वो बनारस जाते ही एक अजीब कश में मुब्तला होगी। इस दुनिया तकद्दस में जहां गुनाह का नाम लेना भी गुनाह था, सुंदर कुमारी को हर दरो दीवार से गुनाह की आवाज आने लगी। वो हैरान थी कि मैं किस मुसीबत में फंस गई हूँ। इस सरजमीन में जहां दुनियावी कसाफ्तों से बालातर होने की आरज़ूमंद हूँ, मेरा इम्तिहान इस कदर शदीद क्यों लिया जाता है? क्या दुनिया नेकियों से खाली है? क्या तकद्दुस और रहबानियत का खात्मा हो गया? क्या कोई मुतनफ़्फ़िस ऐसा नहीं है जो सही हदायत करे और मुझे वो रास्ता दिखा सके जहां पहुंचकर मैं तमाम दुनिया को फरामोश कर दूं? एक रोज इसी ख्याल में मुस्तगर्क गंगा के किनारे एक तन्हा मुकाम पर बैठी थी। इसकी आंखों में काशी में आने के बाद से इस वक्त तक के तमाम नजारे फिर गए। अक्सर पंडितों की बद इखलाकी और इसकी असमत के शदीद खतरा में पड़ जाने के तमाम वाकयात इसकी नजर के सामने आ गए और इसकी आंखों के सामने इन पुजारियों के मुकदमे की भयानक तस्वीर भी आ गई जो मासूम औरतों को तहखाना में रखने, इनकी असमत पर डाका डालने और नाजायज बच्चों के मार फेंक देने के हौलनाक जुर्म में 1903 ईस्वी में गिरफ्तार हुए थे। इस मुकदमे में बनारस के तहखाने में से तकरीबन 70 बच्चों की खोपड़ियां निकली थीं जिनको छुपाने के लिए मारकर वहां डाल दिया गया था। इसने अपने कल्ब की हालत को देखा और इस पर यह हकीकत और भी वाज़ेह हो गई। इसने सोचा कि मुझे बहुत अच्छी तरह इबादत करनी चाहिए, शायद इससे मुझे अपने नफ्स पर काबू हासिल हो जाए और मैं फितरत के मुकाबले में कामयाब हो सकूं। लिहाजा वो तमाम मंदिरों में गई और नहायत खुशू व खुदू के साथ दुआएं मांगी कि देवता इसे कुदरत पर ना सही कम अज कम इसके नफ्स पर इसको फतह दिला दें। यह अमल एक अरसा तक जारी रहा लेकिन कोई नतीजा ना निकला और सुंदर कुमारी के शकूक व शुबात तरक्की ही करते रहे। एक दिन वो मंदिर से निकल रही थी। इसने देखा कि एक गरीब आदमी मंदिर में जाना चाहता है लेकिन कोई उसे घुसने नहीं देता। जब इसने दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ कि वो अछूत है और अगर वो अंदर घुस आया तो मंदिर नापाक हो जाएगा। इसके दिल में ख्याल पैदा हुआ कि ये बेचारा इंसान क्या इन देवताओं को मानने वाला नहीं है? फिर देवता के पुजारी से अपने माबूद तक क्यों नहीं जाने देते? इसने करीब जाकर इस शख्स से पूछा कि तू कौन है? उसने कहा कि मैं एक गरीब आदमी हूं, मैं देवता के दर्शन करना चाहता हूं लेकिन मुझे घुसने नहीं दिया जाता कि मेरे जाने से मंदिर नापाक हो जाएगा। सुंदर कुमारी ने पूछा, क्या तुम इंसान नहीं हो? उसने जवाब दिया, मैं इंसान जरूर हूं लेकिन पंडित कहते हैं कि मेरे छूने से हर चीज खराब हो जाती है। जिस खाने को मैं छू लेता हूं और जिस पानी को मैं पी लेता हूं, हद तक जिस चीज पर मेरा साया भी पड़ जाता है वो भी नापाक हो जाती है। सुंदर कुमारी ज्यादा न सुन सकी, वो ख्यालात में डूब गई और वहां से चली गई। चांदनी रात की रोशनी में बनारस की आलमगीरी मस्जिद ने एक खास दिल आवेजी इख्तियार कर ली थी। इसके बुलंद मीनारों पर एक सुकूत का आलम तारी था और इसके गुंबदों का शकोक और बढ़ गया था। सुंदर कुमारी खड़ी हुई इस नजारा को देख रही थी और तज्जुब कर रही थी कि क्या ये इमारत भी खुद गर्जियों और नफ्स परस्तों का वैसा ही मरकज है जैसा कि दूसरे मुआबद में देख चुकी हूं। वो जानती थी कि दुनिया की आबादी का एक हिस्सा मंदिरों से अलग है और मस्जिदों में जाकर इबादत करता है। अब इसके दिल में यकायक ये ख्याल आया कि इसके अंदर इबादत का क्या तरीका है, इसके अंदर किसकी इबादत होती है, क्या इसमें वो लोग जमा होते हैं जो मेरी तरह मंदिरों से बेजार हैं? इन ख्यालात में मुस्तगरक अपने वजूद से बेखबर वो इस जगह खड़ी रही और सोचती रही कि यकायक इसने अजान की आवाज सुनी। थोड़ी देर बाद इसने देखा कि एक सफाई करने वाला झाड़ू रखकर जीना पर चढ़ा और मस्जिद में दाखिल हो गया। सुंदर कुमारी के दिल में ख्याल पैदा हुआ कि अब लोग इसको रोकेंगे लेकिन इसे किसी ने भी अंदर जाने से मना न किया। सुंदर कुमारी बहुत हैरान हुई और वो भी मस्जिद में दाखिल होगी और सहन के एक गोशे में बैठ गई। हलाल खोर ने मस्जिद में वुजू किया और नमाज में शरीक हो गया। सुंदर कुमारी ने ख्याल किया कि लोगों ने इसे पहचाना नहीं है, अगर मैं बता दूं तो ये मस्जिद से निकाल दिया जाएगा। वो हिम्मत करके उठी, मस्जिद के अंदर गई और इसका हाथ पकड़कर बुलंद आवाज से कहा, ये अछूत है और मेरे सामने झाड़ू दे रहा था, इसने मस्जिद को खराब कर दिया है। हलाल खोर ने कहा, मैं मुसलमान हूं। मुसलमानों ने इससे कुछ न कहा बल्कि सुंदर कुमारी की तरफ मुतवज्जो हुए और कहा कि तू कौन है
जो इस शख्स को रोकती है वो हलाल खोर जरूर है, मगर हमारा भाई और खुदा का परस्तार है, वो हमारे साथ नमाज पढ़ता है। इसमें किसी किस्म का हर्ज नहीं, क्योंकि इस्लाम एक फितरी मजहब है, इसमें जो शख्स दाखिल होता है वो भी पाक हो जाता है। सुंदर कुमारी की हैरत की कोई इंतहा न रही। इसने दिल में सोचा कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं कि अछूतों को बुरा नहीं समझते। लिहाजा इसने और जुर्रत की और एक सफेद पोश बुजुर्ग के पास गई जो इमाम थे। वो बोली, मस्जिद के पुजारी, मुझे अपना देवता तो दिखाओ जो सब आदमियों को बराबर समझता है और किसी से नफरत नहीं करता। उन्होंने कहा, इस मस्जिद के देवता को कोई नहीं देख सकता, वो हर शख्स के दिल में है, सिर्फ इबादत से नजर आता है, वो हर चीज का मालिक है, दुनिया की कोई चीज इसके कब्जा से बाहर नहीं है, वो एक है, न इस जैसा कोई है न इसका कोई शरीक है। तू कौन है जो खुदा को देखना चाहती है? सुंदर कुमारी, बुजुर्ग इंसान, क्या तुम इससे पूछते हो जिसे तुमने कभी देखा नहीं? इमाम साहब, हाँ, वही एक प्रस्तश के काबिल है जिसका हर चीज पर काबू है और वो अपने वजूद के लिए किसी के देखने का मुहताज नहीं। सुंदर कुमारी, क्या वो मेरे दिल को गुनाह से पाक कर देगा? इमाम साहब, इसमें सब ताकत है। जिस तरह कोई तारीकी से निकलकर रोशनी में आ जाता है और यकायक रोशनी को देखकर इसकी निगाहें खीरा हो जाती हैं, इसी तरह राजकुमारी ने इस मुकद्दस इंसान की पाक नजरों में कुछ देखा और हैरान रह गई। लेकिन थोड़ी देर बाद इसने कहा, मुझे अपने पास रखो और अपने खुदा की बातें मुझे बताओ, मुझे तुम्हारी बातों से बहुत इत्मीनान हासिल हो रहा है। इमाम साहब ने इससे कहा, तू अपने अजीजों से इजाजत ले ले, अगर वो इजाजत दे तो यहाँ आकर मुझसे पूछ लिया कर, मैं किसी अजनबी औरत को बिला इजाजत अपने घर में नहीं रख सकता। सुंदर कुमारी ने कहा, मुझ बदनसीब का यहाँ कोई नहीं है, मुझे आपके चेहरे में तकद्दुस की चमक मालूम होती है, जो जो मैं इस पर नजर डालती हूँ मुझे यकीन हो रहा है कि आप में कोई रूहानी कशिश है, इसलिए मुझे यकीन है कि मुझे अपनी बेटियों की तरह रखोगे और मेरे शकूक रफा करके मुझे इत्मीनान निजात का रास्ता दिखाओगे। सुंदर कुमारी अब इमाम साहब के साथ रहने लगी। वहां इसके साथ अजीजों का साथ बर्ताव हुआ। इमाम साहब की बहू बेटियां इसे बहन कहती थी और वो ये महसूस करती थी कि वो एक नई दुनिया में आ गई है। आहिस्ता आहिस्ता इसने तौहीद का सबक सीखा और इसके बाद इस्लाम की मसावत और मुसलमानों के खिलाफ की गर्विदा हो गई। बिल्लाखिर इसने एक दिन कबूल इस्लाम की तमन्ना की और अपनी खुशी से खुदाए वाहद की परस्तार हो गई। इसने ये असूल भी मालूम किया कि इस्लाम दीन फितरत है, वो किसी मर्द या औरत को फितरत के खिलाफ नबर आजमाई पर मजबूर नहीं करता। चुनांचे जब एक दिन इमाम साहब की बीवी ने इसे निकाह की तलकीन की तो वो उनके अल्फाज सुनकर हैरत में रह गई। इसने कहा, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि निकाह मेरी सुन्नत है, जो मेरी सुन्नत से मुंह फेरेगा वो हम में से नहीं। सुंदर कुमारी को साधु के अल्फाज याद आए कि फितरत के खिलाफ जंग नामुमकिन है और वो अमीक ख्यालात में खो गई। जब राजा दियानगर को बेटी की खबर मिली तो वो खुद बनारस आए और उन्होंने बेटी को तलाश किया। इस वक्त तक वो मुसलमान हो चुकी थी। राजा साहब पर इसका गहरा असर हुआ, लेकिन शफकत पिदरी गालिब आई और वो इससे मोहब्बत से मिले। सुंदर कुमारी ने इस माकूल तरीका पर तमाम बातें समझाई और इस तरह बीती सुनाई कि वो बी मुशर्रफ इस्लाम हो गए। सुंदर कुमारी जो अब हसीना बेगम है, इस्लामी शरीयत के मुताबिक अपने बाप की जायदाद की मालिक हुई और इसका अक्द बाप की मर्जी के मुवाफिक एक सैयदजादे बैरिस्टर से किया गया। शादी के मौके पर राजा साहब ने बहुत सारे रुपया इस्लामी तहरीकात खुसूसन तबलीग की इमदाद के लिए दिया और कुछ जायदाद भी वक्फ कर दी, तबलीग के लिए वक्फ कर दी। इनका यह भी ख्याल है कि बनारस की आलमगीरी मस्जिद में 9 मुस्लिमों की तालीम और तरबियत के लिए एक मदरसा खोला जाए, नीज 9 मुस्लिम औरतों के लिए एक आश्रम बनाया जाए जिसकी निगरानी हसीना बेगम साबक सुंदर कुमारी करेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह आज की शख्सियत का तारफ भी मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह फिर किसी दूसरी शख्सियत का तारफ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।